السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ٹریفک مسائل کے حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مناسب پارکنگ کے بغیر کسی میرج ہال کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور انڈر ایج ڈرائیونگ کی صورت میں گاڑی کے مالک کو 6 ماہ قید تک ہو سکتی ہے۔ اجلاس میں بس کی چھت پر سفر، ہیلمٹ کی خلاف ورزی اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ پیش کی گئی، جس کے بعد لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر پابندی اور صوبے بھر میں 30 دن کی ٹریفک بہتری کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ تیز رفتاری یا قواعد کی خلاف ورزی پر ہر شخص کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ ٹریفک پولیس کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، ناکامی کی صورت میں نیا ڈپارٹمنٹ قائم کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ مسلسل بے ہنگم ٹریفک ریاستی رٹ کی کمزوری کے مترادف ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی نگرانی نوا کوٹ، اقبال ٹاؤن، وحدت کالونی اور ساندہ میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی میں 8 ملزمان گرفتار، 6 کلو سے زائد چرس اور 1 کلو سے زائد آئس برآمد کی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا۔ ایس پی نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور منشیات فروشوں کے خلاف کڑی نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کے احکامات پر ٹریفک پولیس نے 24 گھنٹوں میں 55 سرکاری محکموں کی 209 ای چالان ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 1282 جرمانے ریکور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ سی ٹی او نے واضح کیا کہ قانون کی خلاف ورزی چاہے سرکاری گاڑی کرے یا عام شہری، اس پر کارروائی ہوگی اور جرمانے کی عدم ادائیگی پر گاڑی تھانہ بند کی جا سکتی ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے جدید ڈاکنگ ڈرون ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ رن جاری کیا، جس میں ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 کی کال پر ڈرون چند منٹوں میں موقع پر پہنچ کر لائیو ویڈیوز اور تصاویر کنٹرول روم کو فراہم کرتا ہے، جس سے متعلقہ پولیس یونٹ فوری کارروائی کر سکی۔ تجرباتی مرحلے میں مختلف کالز پر ڈرونز روانہ کیے جا رہے ہیں اور پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد یہ ڈرون سسٹم مرحلہ وار پورے پنجاب میں متعارف کرایا جائے گا۔ اوکاڑہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خصوصی پروگرام کے تحت مستحق کسانوں میں ہائی پاور ٹریکٹرز تقسیم کیے گئے، جس کی تقریب میں صوبائی وزیر زراعت سید عاشق حسین خرمانی اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ پروگرام کا مقصد زرعی پیداوار میں اضافہ اور جدید مشینری کی فراہمی کو فروغ دینا ہے۔ کسانوں نے اس اقدام کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹریکٹرز سے اخراجات کم اور کاشتکاری کے مراحل میں بہتری آئے گی۔ تقریب کا اختتام ملکی ترقی کی دعا اور شرکاء کے لیے کھانے کے اہتمام پر ہوا۔ ضلع اوکاڑہ میں سیلابی سیزن 2025 کے دوران دونوں دریاؤں پر خدمات انجام دینے والے بہادر ریسکیورز کے اعزاز میں سینٹرل اسٹیشن پر پرتکلف عشائیہ دیا گیا، جو سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کے ویژن کے تحت منعقد ہوا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ تعلیم اور ضلع کونسل کے افسران سمیت مختلف شعبوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے سیلابی آپریشن کی بریفنگ دی، جبکہ شرکاء نے ریسکیو ٹیموں کی دن رات کی خدمات اور شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین بھی پیش کی۔ ٹیم نے اور ہزاروں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، ان کو ریسکیو کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے آج کی شام، یہ ایک چھوٹی سی جو محفل سجائی گئی ہے، یہ جو سارے میرے نوجوان ہیں ریسکیو 1122 کے، یہ سارے میرے ہیروز ہیں۔ آج کی شام ریسکیو 1122 کے ہیروز کے نام۔ منڈی فیض آباد نواں کوٹ روڈ سمیت نواحی علاقوں میں سیلابی پانی اور بارشوں سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی اور مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے، جس کی نگرانی ٹھیکیدار چودھری قاسم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لنک روڈز کی فوری بحالی کے لیے رفتار تیز کی گئی ہے، مٹیریل کے معیار پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور فیلڈ ٹیمیں مسلسل مشینری کے ساتھ کام میں مصروف ہیں تاکہ عوام کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ضلع خوشاب میں پیٹرولنگ پولیس نے 1 دسمبر سے نافذ ہونے والے نئے اور بڑھے ہوئے ٹریفک جرمانوں سے متعلق آگاہی مہم تیز کر دی ہے، جو ایس پی پیٹرولنگ سرگودہ مدثر اقبال اور ڈی ایس پی غازی عبدالرحمان کی ہدایت پر جاری ہے۔ گشت انچارجز مختلف مقامات پر ڈرائیورز کو قوانین، گاڑی کی فٹنس اور روڈ سیفٹی سے آگاہ کر رہے ہیں، جبکہ پیمپلیٹس کی تقسیم، موقع پر بریفنگ اور مساجد میں اعلانات کے ذریعے شہریوں کو نئے قوانین سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق ٹریفک قوانین پر عمل شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اور آگاہی مہم مزید وسعت دی جائے گی۔
ڈیرہ غازی خان کے لنڈا بازار میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ گرم کپڑوں کی طلب بڑھ گئی ہے۔ شہری مناسب داموں میں بہتر سامان کی تلاش میں لنڈا بازار کا رخ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے لیاقت علی۔ جی لیاقت علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح موسم سرما کا آتے ہی ڈیرہ غازی خان میں بھی لنڈا بازار سج چکا ہے۔ یہ ماڈل بازار میں اس وقت لنڈا بازار سج چکا ہے۔ یہاں لوگ خریداری کے لیے بھرپور آ رہے ہیں، جیسا کہ سردی کا موسم ہے، لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ اپنا سردیوں کو یہاں پہ گرم کپڑے اور گرم پوشاک لینے کے لیے۔ یہاں پہ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پچھلے سردیوں کی طرح اس سردیوں میں ان کا کاروبار پہ کتنا اثر پڑ گیا ہے۔ جی بھائی یہ بتائیں، جس طرح پچھلا بھی سردی گزر چکا ہے، لیکن اس سردیوں میں آپ کا کاروبار کیسا تھا؟ اس دفعہ جو سردی ہے، اس سردی میں آپ کا کاروبار کا کیا صورتحال ہے؟ جی الحمدللہ بھائی جان، کاروبار ہمارا بھی ٹھیک ہے۔ سردیاں آ گئی ہیں، گاہکوں کا رش ہے، اور بس ٹھیک ہے، جو اللہ نصیب میں ہمارے اللہ دے رہا ہے۔ اچھا، مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ سامان آپ کو مہنگا مل رہا ہے، آپ مہنگا بیچ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو اس حوالے سے؟ مہنگائی کا رونا تو ملک بھر کی عوام رو رہی ہے، ہم بھی ساتھ میں ہیں ان کے۔ ہر جگہ مہنگائی ہے، مال پیچھے سے مہنگا ملتا ہے تو ہم یہاں مہنگا بیچتے ہیں، اگر پیچھے سے سستا ملتا ہے تو ہم سستا بیچتے ہیں۔ مہنگائی ہے، مال پچھلے سال اگر ہمیں ایک چیز 100 کی مل رہی ہے، وہی چیز اس سال ہمیں 200 کی مل رہی ہے، تو 200 والی چیز آٹومیٹک ہم نے 300 کی بیچنی ہے، 400 کی بیچنی ہے۔ ہاں جی بالکل، جو مال ہمیں 200-300 کا ملتا تھا، لازمی بات ہے ہم نے وہ 400 کا بیچنا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں ایک گاہک بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، سامان لینے کے لیے آیا ہوا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ جو آپ اس وقت سامان لینے کے لیے آئے ہو، اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائی جان سامان تو ہم لینے آئے ہوئے ہیں، لیکن سامان جو مہنگے دے رہے ہیں، جو ہے نا سامان کافی مہنگا ہے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ لے رہے ہیں۔ اچھا، اب انشاءاللہ مال فی الحال مہنگا دے رہے ہیں، یہ سارا پریشان ہیں ہم بھی۔ ہاں جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ مال مہنگا مل رہا ہے، تو لازمی بات ہے ہم جیسے کہ شہر کا نسبت اگر دیکھا جائے، شہر میں بھی دکانداروں میں بھی ہر چیز مہنگا ہے، لنڈے بازار میں بھی وہی چیزیں مہنگا مل رہا ہے، اور جو دکاندار حضرات کا موقف اس کا بھی سامنے آ گیا، اس نے بھی یہی کہا لازمی بات ہے ہمیں بھی مہنگا ملتا ہے، لازمی بات ہے ہم نے بھی 200-300 منافع رکھنا ہے۔ جی بہت شکریہ لیاقت علی نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ لاہور میں بچوں کی ویکسینیشن سے متعلق آگاہی بڑھانے کے لیے ورک شاپس کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں اللہ وسائے کی رپورٹ۔ جی بالکل، اس ورکشاپ کا مقصد چھوٹے بچوں سے لے کر 18 ماہ کے بچوں کو خسرہ، ربیلیا سے 12 ملک کی بیماریوں سے محفوظ بنانا ہے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ماریہ محمد، سینئر کمیونیکیشن علمدار حسین، یونین کونسل پولیو افسر نے مہم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے شرکاء اور میڈیا کو مؤثر کوریج یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ خسرہ اور ربیلا مہم کے پہلے دن 91% جبکہ دوسرے دن 93% ہدف حاصل کیا گیا، جو ٹیم کی محنت اور مؤثر حکمت عملی کا مظاہرہ ہے۔ ورکشاپ کے دوران شرکاء کو حفاظتی ٹیکہ جات کی اہمیت، روٹین اور کمیونٹی میں آگاہی پھیلانے کا مؤثر طریقے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ میڈیا نمائندگان نے آگاہی کی فیلڈ ٹیموں کے ساتھ کاوشوں و محنت کو سراہا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سواصل، لاہور اسپیشل ٹی وی، اللہ وسائے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے کچے سے اغوا ہونے والے تینوں مغوی جنید، مشوق اور رشید پولیس کی کارروائی میں بازیاب کر لیے گئے، جبکہ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کے مطابق مغویوں کو کروڑوں روپے تاوان کے لیے رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ آپریشن میں ایک قومی انٹیلیجنس ایجنسی نے بھی معاونت کی اور کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑا آپریشن جاری ہے، جو ان کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ رحیم یار خان میں فوکل پرسن عبدالصبور نے مریم نواز کلینک جمال الدین والی کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے عملے کے رویے اور علاج کی سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کی۔ مزید تفصیل بتائیں گے ظفر اقبال۔ جی ظفر بتائیے گا۔ ہاسپٹل میں جہاں پر فوکل پرسن جناب عبدالصبور صاحب نے جمال الدین والی ہاسپٹل کا وزٹ کیا، تو ان سے جانتے ہیں کہ گورنمنٹ پنجاب اور محترمہ مریم نواز کی جانب سے کیا ڈائریکشن ہے ہاسپٹل پرائیویٹ جو ہوئے ہیں ان کے حوالے سے، اور ان کے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جو حکومت پنجاب ہے، وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت میں عوام کو بنیادی سہولتیں ہیں ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج میں نے یہاں پہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، دیکھا ہے، لوگوں کے تاثرات لیے ہیں، اور یہ جو ہاسپٹل آؤٹ سورس ہوئے، آپ نے کہا کہ یہ پرائیویٹ ہے،
ये बेसिकली प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट इनको ओन करती है, गवर्नमेंट इनको फंड देती है और इनको लुक आफ्टर भी करती है कि आज जो हुकूमत पंजाब अपनी आवाम पे पैसा खर्च कर रही है वो आवाम तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। तो मुझे देख के यहाँ पे मतलब अच्छा तासर हुआ है कि लोगों को मेडिसिन भी मिल रही थी और बुनियादी तौर पर जो सर्जरीज यहाँ पे और पूरे जो डॉक्टर स्टाफ वगैरह मौजूद था तो लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है। तो यही किसी भी हुकूमत का यही मैनिफेस्टो होता है कि आवाम को उनकी सहूलतें जो है उनके घर तक पहुंचाई जाएं। तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल करना है कि मरियम नवाज़ हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट हुए हैं उनमें से काफ़ी ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं कि इलाज मुआवजे में जो है ना डॉक्टर्स हज़रात गफलत करते हैं या मेडिसिन वगैरह के हवाले से। तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं उन डॉक्टर्स को जो गफलत करते हैं? देखें जी, आप मेरे साथ ही थे, मैंने बहुत से लोगों को तासरात लिए, तो किसी एक बंदे ने भी ऐसी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यही कहा कि हमें पहले से ज़्यादा सहूलियत यहाँ पे मैसर है, सर्जरीज़ भी हो रही हैं, डेंटल भी है, एनेस्थेटिस्ट भी है, गायनाकोलॉजिस्ट भी है, आर्थोपेडिक सर्जन भी है। तो मैं समझता हूँ कि यही मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की कामयाबी है। तो अगर किसी की कोई नेगेटिव फीडबैक है तो बताएं, हम इंशाल्लाह हाज़िर है हुकूमत पंजाब उसको हल करने के लिए। जी, हम इस वक्त मौजूद थे जनाब फोकल पर्सन अब्दुल सबूर साहब के साथ, जिन्होंने कहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सख्त डायरेक्शन है कि हॉस्पिटल के मामले में, सेहत के मामले में कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। तो मैं ज़फ़र इकबाल मज़ारी हूँ और आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर स्पेशल टीवी रहीम यार खान। ज़फ़र इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। कसूर में आजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस फोर्स की वेलफेयर के तहत रवा साल 34 लाख रुपए की तालीमी स्कॉलरशिप्स और 1,20,67,000 रुपए की माली इमदाद अहलकारों में तकसीम की गई, जबकि ज़ख्मी अहलकारों को 3,50,000 और शुहदा की फैमिलीज़ को 41,58,000 रुपए फराहम किए गए। DPO कसूर के मुताबिक तदफीन, मेडिकल सहूलियात, वेडिंग गिफ्ट्स और बच्चों की तालीम के लिए भी खातिर ख्वाह फंड जारी किए गए हैं और 12 तालीमी इदारों, 12 निजी हस्पतालों के साथ मुआहदे किए गए हैं। जलालपुर पीरवाला में बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती के वाक़े के बाद उसे अगवा कर लिया गया। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे मुमरेज़ हमीद। जी मुमरेज़, बताइएगा। जी, मैं इस टाइम तहसील जलालपुर पीरवाला के अंदर मौजूद हूँ। जलालपुर पीरवाला मौज़ा मीरा मल्ला के अंदर कुछ दिन पहले एक बच्चे के साथ बाअसर और ज़िम्मेदार शख्स ज़्यादती करता है। ज़्यादती करने के बाद उसकी वीडियो वायरल होती है। थाना सदर जलालपुर पीरवाला एक्शन लेते हुए उसके ऊपर पर्चा दर्ज करता है और बच्चे को भी अगवा कर लिया जाता है। बच्चा इस टाइम बाजियाब हो चुका है और मेरे साथ मौजूद है। मैं उससे पूछता हूँ कि ये वाक़या किस तरह से हुआ। जी, चौधरी सलीम दे रहे थे मैं काम करे ना, ते 18 तरीक को मैं गया उन्हें कोल मकई दे सिट्टे सुखाउण वास्ते, ते हुण जी बार शाम दा टाइम ही छुट्टी दा टाइम थींदा पिया ते कम खत्म थी गया, छुट्टी दा टाइम थी गया ना, ते उन्हें कोल पैसे गिनाने वास्ते बस टाइम आ गया गया। चौधरी सलीम आ गए बाद गुआना पे मेरे को सारे के अंदर मन के कमरे भी लाए सी, उतना मन के पिस्टल चाहे मेरे नाल ज्यादती कराने पै गए ते धमकी लाने पै गए, वीडियो बढ़ा के दी सी। तो उन्हें बाद शाम का टाइम भी बस और मेरे घर वाले गुलेंदे मेरे को आ गए, तो उन्होंने सामने उन्होंने मेरे को पिस्टल चाह के मेरे सिर रख के उन्होंने आखन पै गया कि अगर इनको बचाना चाहते तो कहीं को कोई गाल ना करे। मेरे को गड्डी पैंदा एक्सल लाइए पैंदा मेरे को चाह गए, दो बंदे हम ते मेलसी मेरे को चाह गए उतना ना मालूम जगह है, उतना दो बंदे बाहर खड़े रह गए, उतना पारा देंदे रह गए। तो उतना मैं जियां मौका रिठे मैं तू भाज आया, मैं बाहर आके रबता किते में घर आने नाल, तो उन्होंने को किराया मंगा के मैं सीधा थाने आया। तो उत जड़ा कुछ तशवीश थी उन्होंने मैं गाल की थी। जी, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे के साथ एक बाअसर और ज़िम्मेदार शख्स ज़्यादती करता है। ज़्यादती करने के बाद बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। अगवा करने के बाद बच्चा उनकी कैद से बामुश्किल वहाँ से बच के निकलता है और थाने में आके रिपोर्ट करता है। बच्चे के साथ ज़्यादती भी होती है और उसकी वीडियो भी वायरल होती है। वीडियो वायरल करने के बाद बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। इस टाइम ये थाने के अंदर मौजूद हैं और हुकाम बाला से इंसाफ की अपील करते हैं। जी, एबटाबाद में हवेलियां से मगरी जाने वाली जीप गहरी खाई में गिरने से 5 अफराद मौका पर जा बहक हो गए और जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
रेस्क्यू 1122 और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके जख्मियों और लाशों को निकाला। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जाबाहक अफराद के जिस्म लवाहिकीन के हवाले कर दिए गए। ताहम बाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। नारोवाल में रेस्क्यू 1122 के जवानों का फिटनेस टेस्ट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर औरंगजेब की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद रेस्क्यूअर्स की कारकर्दगी और हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी को बरकरार रखना है। इंजीनियर औरंगजेब के मुताबिक फ़िटनेस टेस्ट हर माह बाकायदगी से मुनक्किद किए जाते हैं ताकि अमला हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार रहे। इस्लामाबाद में बिलाल आज़म खान ने कहा कि इस्लामाबाद नंबर वाली गाड़ियों पर ई टैग लगाकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे राजा शो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जो एक्साइज के डायरेक्टर हैं बिलाल आज़म खान साहब। काफ़ी अच्छे से ये इस्लामाबाद के लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं और जो भी आता है इस्लामाबाद के शहरी उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश भी आते हैं और इनके दरवाजे हर वक्त इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, अवाम के लिए खुले होते हैं। कोई रुकावट नहीं होती। जब भी आप आना चाहें आएँ। जो भी आपका अगर मसला है कोई गाड़ियों के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इनको बताया करें। आज हम इनसे बात करेंगे जो ई टैग इस्लामाबाद में लगाए जा रहे हैं गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, जो डीसी और कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा था, उस वाले से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जो ई टैग लगा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं ई टैग और एम टैग, इसमें हमारे नाज़रीन को बताइए क्या फ़र्क है उसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो आपका क्वेश्चन है उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि ये क्लैरिफाई हो जाए। कोई भी शहरी जिनका एम टैग मोटरवे का पहले लगा हुआ है उनको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप उसको एम टैग कहें या ई टैग कहें, ये एक ही चीज़ है। और ये RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम चाहते हैं कि हम विद इन इस्लामाबाद जो है गाड़ियों की रीडेबिलिटी जो है वो इंश्योर कराएं, ताकि वो फर्दर जो है हमारे शहर की सिक्योरिटी के लिए और उसके लिए हम यूज़ कर सकें। और ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो उनका विजन था और उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि इस हवाले से ये काम करना है और पूरी दुनिया में भी ये एक 3rd नंबर प्लेट जो कि एम टैग की सूरत में यूज़ होता है, तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया और पब्लिक के लिए हमने कई सेंटर्स बनाए, जिसमें फ्रॉम 9 to 9 जो है 10-12 डिफरेंट सेंटर्स हैं, जहाँ से कोई भी शहरी जो है वो आके अपना एम टैग इशू कर सकता है जिनका नहीं लगा। अच्छा, दूसरा सर ये बताइए, थोड़ा सा लोगों में अवाम भी पाया जा रहा है कि हमारी जो मालूमात है जो हम डेटा देंगे आपको, आया ये कहीं लीक तो नहीं, हमारा डेटा, पर्सनल डेटा कहीं लीक तो नहीं होगा कहीं किसी जगह पे? देखिए, जहाँ तक डेटा की बात है तो डेटा तो हम एडिशनल डेटा तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर ये गाड़ियों के डेटा की बात की जाए तो वो डेटा तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में मौजूद है और डेटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो उसमें डेटा लीकेज की कोई बात खुदा न खास्ता अगर हो तो वो तो अभी भी हो सकती है, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है। तो डेटा लीकेज वाली कोई बात है सच है ही नहीं। डेटा ऑलरेडी एक्साइज के पास है, डेटा ऑलरेडी सेफ सिटी के पास है, ठीक है, और वही डेटा है। हमने जस्ट जो है इंश्योर कराना है सेफ्टी के हवाले से, इस हवाले से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने बिलाल साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी कोई दिल में कोई मसला था या वहम था वो आपका दूर हो गया होगा। कैमरामैन असद के साथ राजा शौकत महमूद, स्पेशल टीवी, इस्लामाबाद। रहीम यार खान कोर्ट समाबा में पैरा फोर्स ने फुटपाथ्स और गुजरगाहों पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को SDO ज़ियाउल्लाह गोंदल की निगरानी में एमरजेंसी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और नोटिस जारी किए। हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद दुकानें बारहा तंबी के बावजूद हदूद से बाहर थीं, जिससे ट्रैफिक और अवामी सहूलत मुतासिर हो रही थी और कार्रवाई आइंदा भी जारी रहकर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और इक़दामात किए जाएंगे। ज़िला खानेवाल में स्टोर से मुबैना तौर पर रात के वक्त चोरों ने सोलर पैनल्स चोरी कर लिए, जिससे इलाके में तशवीश पैदा हो गई है। दुकानदारों ने पुलिस को दरख्वास्त दी, जबकि शहरियों ने रात के वक्त गश्त बढ़ाने और सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालिबा किया है। हवेली रखा में सीवरेज और गंदे पानी से काश्तशुदा सब्जियां शहरियों के लिए ख़तरा बन गई हैं।
जिससे हेपेटाइटिस बी और सी और जिगर की बीमारियां फैलने का खदशा है। शहरियों ने मकामी इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर से काश्तशुदा सब्जियात को तलफ करने और गंदे पानी के इंतजामात बेहतर करने का मुतालिबा किया है। मानसवेरा में शाहराए कागान पर तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरने से एक मर्द और एक खातून जाँ बहक हो गई, जबकि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। मकामी अफराद और पुलिस ने जाँ बहक और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर किंग अब्दुल्ला हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जामिया सिंध नौशेरो फिरोज़ कैंपस में शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम इंटेलीवर्क्स IT एक्सपो कामयाबी से मुनक्किद हुई, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद बरी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उमैर अली और दीगर मौज़ज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में तलबा ने अपने जदीद प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर्स और तहकीकी मॉडल्स पेश किए, जिनकी तख्लीकी सलाहियत और फ़नी महारत की तारीफ़ भी की गई। मुंतज़मीन ने कहा कि इस नौइयत की सरगर्मियाँ तलबा को अमली तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में महारत हासिल करने के मौक़े फराहम करती हैं। नसीराबाद में महकमे स्पोर्ट्स की जानिब से डिवीज़न सतह पर 7 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अली करार ने फ़ुटबॉल को किक लगा कर किया। तकरीब में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और डोर समेत दीगर मुकाबले शामिल हैं, जिनमें नौजवान खिलाड़ी भरपूर जोश व जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक फ़ेस्टिवल का मकसद खेलों के फ़रोग़, नौजवानों की मस्बत सरगर्मियों की तरग़ीब और हुनरमंद खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ज़िला कोरंगी कराची में गैर कानूनी बाज़ारों, ख़ासतौर पर मेहरान टाउन के बचत बाज़ार की भरमार से पैदल और गाड़ी सवार शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे अहमद अकबर। जी अहमद अकबर, बताइए। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी टाउनशिप का इलाका है मेहरान टाउन। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ताहद्दे निगाह ये बाज़ार लगता है और मैप के मुताबिक ये रोड 100 फुट है, मगर देखिए आप, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, आवाम के हिस्से में बामुश्किल ये 9 फुट रोड आता है, जो कि कहने को मैप के मुताबिक 100 फुट रोड है। ये तजावज़ात का सिलसिला, ये बाज़ार जो है AC हसन खोसो साहब तकरीबन 2 बार इसे जो है बंद करवा चुके हैं, मगर वो कौन से पुरस्कार अहकामात हैं जिनके तहत ये दोबारा खुल जाता है और बहाल हो जाता है और शहरियों को जो है गुजरने के लिए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी, कराची में बढ़ते हजूम और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र घोड़ों पर सवार माउंटेड पुलिस शहरियों को गलियों, पार्क्स और साहिल पर महफूज माहौल फराहम कर रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे ब्यूरो चीफ फ़याज़ हुसैन। जी फ़याज़ हुसैन, बताइए। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंटेड पुलिस, जिनकी स्पेशल फ़राइज़ होते हैं कि ये कोई भी स्पेशल प्रोग्राम होता है, कोई भी पासिंग आउट परेड होती है, यहाँ साहिल समंदर पे ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनकी क्या फ़राइज़ हैं, क्या ड्यूटी है। जी, तो इस वक्त हमारे साथ एक अफसर मौजूद है, उनसे मालूमात लेते हैं कि माउंटेड फोर्स का क्या जो मिशन होता है, उनके क्या फ़राइज़ होते हैं। जी सर। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फ़ारूक है और ये माउंटेड पुलिस का मैं इंचार्ज हूँ। और माउंटेड पुलिस का बहुत ही मतलब अच्छे ऑफिसर्स हैं हमारे पास, जिसमें से हम लोग जो ड्यूटी देते हैं वो शाहदयात पुलिस राइडिंग स्कूल है, वहाँ जो बच्चों को जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। और उसके बाद हमारे पास टीचर अच्छे हैं, उस्ताद अच्छे हैं, बहुत अच्छे गेमर निकलते हैं वहाँ से। और उसके बाद गाइड ड्यूटी साले समुद्र सीवी पे करते हैं, जिससे नफरी का जो आवाम का जो है डूबने से बचाव करते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी ड्यूटी है, स्क्वाड परेड है, ये हम सारे कार्य अंजाम देते हैं। अफसरान बाला का हमारे से बहुत ही अच्छा लिंक है और अच्छा ताउन करते हैं और घोड़ों की बहुत अच्छी केयर होती है। राशन पानी बिल्कुल बराबर सूरत में मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोर्स शाना बशाना चल रहा है। अच्छा सर, कितने घोड़े मौजूद हैं इस फोर्स के अंदर? हमारे पास 35 घोड़े हैं। 35 घोड़े में कुछ बच्चे भी हैं। सही। और वो जो अनट्रेन हैं, बका जो ट्रेन है वो 15 घोड़े जो है शाहदयात पर राइडिंग स्कूल में चलते हैं और 2 घोड़े जो है सर समुद्र सीवी गाइड ड्यूटी अंजाम देते हैं। इनको VIP मौक़ों पे भी जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, परेड वगैरह के लिए? हाँ, VIP प्रोग्राम कोई भी होता है, यानी कि स्क्वाड परेड है, पासिंग आउट परेड है। और जैसा ये प्रोग्राम गेमों का चलता रहा है, इसमें गेमों में नेज़ेबाजी होती रही है, हमारी माउंटेड पुलिस का बहुत अच्छा किरदार अदा की है। और उसके बाद साथ साथ में स्क्वाड परेड भी होती रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफसरान का बहुत ही हमारे ऊपर मतलब नज़र आसानी है और तवज्जो रखते हैं सारे हमारे ऊपर। थैंक यू।
जी आप बताइएगा कि ये जो घोड़े आप ट्रेनिंग आप देते हैं या ट्रेंड हुए होते हैं और आप सवारी करते हुए कैसे फील होता है, इसकी प्राइस की अंजामदही में कैसे? ये जो हम लोग घोड़े नए लेकर आते हैं उनको हम लोग खुद ट्रेनिंग करते हैं और इनके ऊपर 10 पैकेज भी करते हैं, पोलो भी खेलते हैं और हमारा शहद याद राइडिंग स्कूल है जहाँ लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जो बच्चों को और पुलिस अफसरान के बच्चों को भी हम लोग सिखाते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से और अपना नाम भी बताइएगा और कैसे महसूस कर रहे हैं इस जॉब पे, आपको कितना टाइम हो गया, कितना अर्सा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक बेसिकली यहीं से ही है और अर्सा तकरीबन 15 साल से जो है राइडिंग कर रहा हूँ और बाहैसियत शायद हयात पुलिस राइडिंग स्कूल क्लिफ्टन कराची के अंदर इंस्ट्रक्टर हूँ और बहुत अच्छा फील करते हैं, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मेरा आपके चैनल से तवसत से जो है सब कराची वालों के लिए एक पैगाम है कि आएँ, एक अच्छी एक्टिविटी है, एक अच्छी वर्जिश है, आगे ज्वाइन करें शायद हयात पुलिस क्लब। थैंक यू। चाचा ये बताइएगा आपकी उम्र कितनी और कितने अरसे से ये ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं? मैं 33 साल से माउंटेड पुलिस में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नौकरियाँ की हैं। यह है कि माउंटेड पुलिस में यह काम है कि समुंदर पे भी ड्यूटी करते हैं, साहिल समुंदर पे, और बाकी जो है हर जगह एयरपोर्ट पे भी ड्यूटियाँ की हैं, बहुत सारी ड्यूटियाँ, सिक्योरिटी ड्यूटियाँ भी की हैं और हमारे शायद हयात राइडिंग स्कूल भी है, उनमें वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 घोड़े हैं हमारे पास, बहुत अच्छे फोर्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उमरकोट में डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़ा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अमन व अमान सिक्योरिटी इक़दामात, सरकारी स्कीमों की पेशरफ्त और एपैक्स कमेटी की फ़ैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुतल्लिक़ा महकमों को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम, स्नैप चेकिंग बढ़ाने, CCTV कैमरों की तनसीब और गैर कानूनी कब्ज़ों और पेट्रोल पम्प्स को सील करने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों की कारकर्दगी को सराहते हुए मौसर और मरबूत अमल दरामद पर जोर दिया। लड़की के सरकारी अस्पताल में अद्वियात की किल्लत और डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी पर शहरियों ने MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि गरीब मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिलती और एमरजेंसी में डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं हैं। मुतल्लिका हुकाम से मुतालिबा किया गया कि इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया जाए। मीरपुर माथेलो में डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर माजिद हमीद ने प्रेस क्लब्स और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान के साथ मशावरती इजलास मुनक़िद किया, जिसमें दहशत गर्दी के खात्मे, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात और इंतहा पसंदी के खिलाफ इज्तिमाई इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शुरका ने अमन व अमान के फ़रोग़ और नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। हेवन शरीफ में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के इंतज़ामात का आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा सुहेल अनवर सयाल और सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी की सदारत में सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान, हंगामी सड़क मरम्मत और ज़ायरीन की सहूलियात को बेहतर बनाने पर गौर किया गया। उसके बाद मुस्तकिल ब्यूटिफिकेशन और मेन रोड की नई स्कीम पर काम भी शुरू किया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।